ये पेन तकलीफ दिया था कल? नहीं, अब कोई तकलीफ देता है? नया ले लो ना तो। नया लेगा, डेली आने से याद आता है, फिर भूल जाता है। अभी ऑर्डर कर लो। शुरू फंसने से ये घुसा के फिर निकाल लेना, कभी कभी नहीं होता है। आपका ये एक्सपीरियंस होगा इसका ना। Hello, very good evening everybody. Just give me a moment, okay? चलो, I can see that some of you have joined already. What about others? चलो फटाफट join कर लो. Let us wait. I can see Ravi Gupta, Webbing, and then Patuk is there. Welly is there, and Tacho is there. Senya, Ripe. I don't know how to you pronounce it. I'm so sorry. Okay, if I'm not pronouncing your name correct. Hi, hello, good evening everybody. Okay, Jerry has also come. Kigar is there. Gupta is there. Sir, बीच में कोई ad आ जा रहा है. I'm so sorry for that. I wish I could help it. Good evening everyone. Let us, without further ado, let us start our class, okay? So yesterday was a demo class, so today onwards we are going to start our syllabus. As I told you people, we are going to start with the basics, okay? So हम लोग subject और predicate से start करता है. I want you people to understand that though no direct question would come from there, आपको question नहीं पूछा जाएगा that what is subject or what is predicate like that, but then you must have the knowledge about subject and predicate, otherwise you won't be able to attempt the question from voices. Voices में सबसे पहला काम होता है आपको subject को find out करना. अगर आप subject को find out नहीं कर सक रहे हैं, you are going to have trouble, okay? So let us start. As I told you, the first topic we have is subject and predicate. Or in other words, you can say these are the, subject and predicate are the basics for writing a sentence, okay? Every time you want to speak or write a sentence, आपको हमेशा एक subject और predicate का जरूरी होता है. Subject क्या है? The subject of a sentence is a noun और a noun equivalent का मतलब है noun का बराबर वाला, about which something is said. Example: Ram plays cricket, or I speak English, or she is a good girl. Now, if you observe, you can see that the definition tells us subject basically क्या होता है, कोई भी एक noun, और a noun equivalent का मतलब है कोई भी word जो noun का बराबर हो, may be a pronoun. Pronouns are words जो noun को replace करता है ना. So बोलता है कि it can be a noun or pronoun about which जिसके बारे पे sentence बोला गया हो, ठीक है. Now if you observe the examples, you can see that the first example says Ram plays cricket. So here we are talking about Ram. हम लोग राम का बारे में बोल रहे हैं कि राम क्रिकेट खेलता है. In the second example, if you see I is not a name, I is a pronoun, okay? I speak English, so we are talking about I, so I is our subject. Third one, we have she. She is a subject because she का बारे में बोल रहे हैं is a good girl, ठीक है. Now if you understand,
subject, as I just told you, you need to understand कोई भी noun या pronoun जिसका बारे में sentence बोला गया हो. So if you observe the sentence, you can see that cricket is also a noun, isn't it? तो क्या cricket भी एक subject है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. Why not? Because you need to understand that a noun or a pronoun can only be considered as a subject when it has a predicate of its own, or you can say when it has a verb after it. जब उसका खुद का verb होगा तभी हम लोग उसको क्या बोलेगा? We're gonna call it a subject, okay? So cricket is a noun, it can be a predicate. English is a noun, it can be a object, or girl is a noun, but it cannot be a subject. On the other hand, Ram, I और she जो है subjects है, क्योंकि उसके बारे में हम लोग sentence बोल रहा है और उनका अपना एक verb है. Suppose plays is a verb जो राम का है, speak is a verb जो I का है, is a verb जो कि she का है. ठीक है? So I hope you people are clear about your subject. So please do understand subject as it's not necessary कि वो human being ही होगा. Sometime we talk about an animal, sometime we talk about a thing. So जिसके बारे में sentence अगर हम बोलता है this pen is very smooth. Now you need to understand I'm talking about this pen here. So this is our subject. Okay? So please do understand अगर हम बोलेगा the dog is very aggressive. Now if you observe the sentence, you can see I'm talking about the dog, which is an animal, right? So please do understand subject as कोई भी noun या pronoun जिसके बारे में sentence बोला जाएगा, we call it a subject. So subject is clear to all of you? Please type C if it's if you are clear, okay? And if you have any confusion, please ask me that, sir हमको समझ में नहीं आया, can you please repeat like that, na? Feel free, it's clear. Okay, I can see that no confusion is there. Please do respond, okay? It's really important. अगर आप लोग respond नहीं करेगा तो I would not be able to understand, right? See, don't expect me to be a psyche and read what's in your mind, okay? You people need to respond so that I would know कि हाँ उसको समझ में आ रहा है या उसको confusion है, like that. So I'm gonna repeat briefly one more, please. Okay, one more time, I think. Okay, I'm gonna for the last time, okay? Pay attention those who haven't heard, joined late, a bit late, और जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर से सुन लेना ना. So basically हम बता रहा था that every time you want to speak or write a sentence, आपको हमेशा एक subject और predicate का जरूरत पड़ता है. So these are the basic element for writing a sentence. Okay. Now please have a look. It tells us that subject क्या है? They are generally a noun. वो एक noun होता है या फिर एक noun का बराबर वाला word, maybe a pronoun, जिसका बारे में हम लोग sentence बोलता है. Now in these examples you can see हम लोग बोला है कि Ram plays cricket, so we are talking about Ram. I speak English, so we are talking about I. She is a good girl, we are talking about she. This pen is very smooth, we are talking about this pen. The dog is very aggressive, so we are talking about the dog, right? So please do understand it likewise, okay? कोई भी चीज़ जिसका बारे में हम लोग okay. So those who are having a network issue, they can watch the video later as well. अगर आप लोग थोड़ा ये लेट ज्वाइन किया है या फिर अगर आपका नेटवर्क इशू हो रहा है तो आप जो है मोर द वेदर इज नॉट वेरी गुड टुडे, राइट? तो मौसम थोड़ा ख़राब भी है, तो उसके वजह से सम ऑफ यू पीपल might have a network issue. Please go through the video eventually, okay? और later जब आपका नेटवर्क थोड़ा ठीक होगा तो, right? Anyway, so as I was saying, जिसका बारे में sentence बोला जाता है, that is our subject. Now let us know predicate. Predicate is all that we tell about the subject. Example, PDF. Yeah, sir will be sending the PDF. If you have any query, please do ask Med sir, okay? He has all the PDFs. Anyway, you say
यू सी प्रेडिकेट क्या है? ए प्रेडिकेट इज ऑल दैट वी टेल अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बोला जाएगा, दोज आर कॉल्ड predicate. Okay, let me write you the example so that it will be more clearer to you people. अगर हम लिखता है Ram goes to college, or my mother cooks for us, or he was sleeping. Now if you observe these examples, you can see that, let us find out the subject first, okay, so that we can understand it better. Ram goes to college, so we are talking about Ram, so Ram is our subject. My mother, I'm talking about my mother here, so my mother is our subject. Third sentence, we are talking about he, so he is our subject. Okay, now according to a definition, it tells us that सब्जेक्ट का बारे में क्या क्या बोलेगा, वो सब हम लोग का क्या है? प्रेडिकेट है. सो प्रेडिकेट नॉट नेसेसरीली कि सिर्फ वर्ब भी होगा, वहाँ प्रीपोजिशन होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सब कुछ हो सकता है, आर्टिकल्स भी हो सकता है ना. तो राम का बारे में बोल रहा है कि गोज टू कॉलेज, सो गोज टू कॉलेज इज आवर प्रेडिकेट. माई मदर का बारे में बोल रहा है कुक्स फूड फॉर अस, खाना पकाता है ना. ही का बारे में बोल रहा है कि वाज स्लीपिंग. Now if you observe these examples, you can see that he का बारे में बोल रहा है was sleeping, so this is our predicate, and cooks for us is our predicate, and goes to college is our predicate. Now basically आपको ये समझना है कि noun का बारे में, I'm sorry, not about noun, subject के बारे में जो कुछ भी बोला जाएगा, that is what we call predicate. ठीक है? I hope subject and predicate is clear to all of you. Now you people might have observed that most of the time जब हम लोग sentence लिखता है, what do? We write our subject in the beginning of the sentence, ना. अगर आप sentence को ध्यान से देखिएगा, let us start from the first example. यहाँ में subject first में आया है, second में first में आया है, third में first में आया है, fourth में first and इसमें first, यहाँ पे first में, यहाँ first and यहाँ first. So generally that is what we do, okay, most of the time when we speak and when we write our sentence, हम लोग subject को first में रखता है. ठीक है? But again, I want you people to understand that that is not mandatory. That is not compulsory that आप हमेशा subject को first में रखें. You may come across a sentence where you won't find your subject in the beginning of the sentence. Okay? Now, let us write a note. So every time I want you people to write a note, or I write a note, I want you people to pay a very good attention to that. Okay? Because notes are always important. Note क्या बोलता है देखो, it tells us that it is not necessary that the subject should come in the beginning of the sentence. Full stop. Occasionally, or you can say sometimes, it is put at the end, that is after the predicate. Okay. Maybe you have a trouble. Okay, please do tell me. As I told you people, right, the class would be interactive. अगर आप लोग को लगता है कि आप थोड़ा fast पढ़ा रहे हैं या थोड़ा slow पढ़ा रहे हैं, तो feel free to tell me, okay? LD, you have a confusion. My mother or mother is subject. So please do understand. आपका mother बोलने subject नहीं होगा. किसका mother हो जाएगा ना? So आपका my mother is your subject, okay? Mother only cannot be a subject. See, there is one more example. यहाँ पे है ना, the question may come, you people may be confused कि dog subject है ना, the dog subject है. If you have confusion, you can see that अगर हम बोलेगा is very aggressive, कौन very aggressive है? dog. कौन सा वाला dog? वो वाला dog. We are talking about one particular dog. So the dog is your subject. ये अकेला subject नहीं हो सकता है. ठीक है?
प्लीज डू अंडरस्टैंड इट लाइकवाइज ना. सो लाइकवाइज यहाँ में पेन जो है सब्जेक्ट नहीं है, दिस पेन सब्जेक्ट है. ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मदर था तो मदर इज नॉट आवर सब्जेक्ट, माई मदर इज आवर सब्जेक्ट. ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर. एंड फॉर यू मेरी, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज यू नो फील फ्री टू टेल मी. ओके, और आपको लगता है कि हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं तो सर कैन यू प्लीज गो अ बिट स्लो, ऐसा सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम, यू कैन टेल मी लाइक दैट. ओके, चलो एनीवे. सो हमको लाइक yes, I do have that issue sometime, you know, like I tend to go a bit fast ना. हमको लगता है कि confusion नहीं हो रहा होगा ऐसा, but then if you have confusion please do feel free to tell me, right? Anyway, चलो देखो हम बता रहा था जैसे कि okay, चलो थोड़ा I'm gonna try to go a bit slow. Okay, so जैसा कि हम बता रहा था आप लोग को सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन जिसका बारे में सेंटेंस बोला जाता है. एंड प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ हम लोग बोलेगा वी कॉल इट अ प्रेडिकेट, राइट? सो दैट पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई एम प्रीटी मच श्योर. नाउ नेक्स्ट इट टेल्स अस दैट जरूरी नहीं है कि हमेशा सब्जेक्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग सेंटेंस लिखता है ना तो हम लोग का सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो हमेशा फर्स्ट में लिखता है जनरली. ओके, यूजुअली से आउट ऑफ 100 सेंटेंसेस दैट वी स्पीक और राइट, हम लोग क्या करता है 95 टाइम्स हम लोग जब सेंटेंस लिखता है तो हम लोग क्या करेगा, आपका सब्जेक्ट को जो है इन द बिगिनिंग, वी कीप इट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, राइट? बट सम टाइम व्हाट हैपन्स, जैसे कि यहाँ पे बोला है कि कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको हमेशा आपका सब्जेक्ट फर्स्ट में ही होना है. कभी कभार क्या होगा, आपको एक ऐसा सेंटेंस भी देखने को मिलेगा जहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है वो एंड में आया होगा. ठीक है, लेट अस हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल ना. एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ में आपका सब्जेक्ट जो है फर्स्ट में नहीं आया है. ठीक है, लुक, अगर हम सेंटेंस लिखता है into the bottom sank the sail, or sweet are the uses of adversity. नाउ अगर आप ये दोनों सेंटेंस को देखता है, यू कैन ऑब्जर्व दैट यहाँ में बोल रहा है कि इनटू द बॉटम, मतलब एकदम बॉटम में डूबा हुआ था. सेंक का पास्ट सेंक इज द पास्ट टेंस ऑफ सिंक. ओके, तो डूबा हुआ था क्या, द सेल. द सेल का मतलब क्या है, द शिप. नाव को बोल रहा है, बोलता है कि एकदम बॉटम में डूबा हुआ था द शिप. So you can see that our subject has come at the end. Into is a preposition. It cannot be a subject. ना वो subject नहीं है. ठीक है, मतलब कहाँ में डूबा था वो बता रहा है ना. Into the bottom, गहराई में डूबा हुआ था क्या चीज़, the ship. So you can see our subject has come at the end. Okay. Look at the next one. Sweet. ये sweet मिठाई वाला sweet नहीं है. ठीक है, अच्छा वाला. You are very sweet बोलते हैं ना, इसका मतलब आप मिठाई है ऐसा तो नहीं है, आप बहुत अच्छा है ऐसा ना. स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, बोलते हैं कि एडवर्सिटी का जो यूजेस होता है वो स्वीट होता है बोलते हैं. ठीक है, सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सब्जेक्ट विच इज एडवर्सिटी. एडवर्सिटी का मतलब पता है ना क्या है, आदमी का लाइफ में जो तकलीफ समय होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एडवर्सिटी. ओके, नाउ यू कैन सी दैट आपका सब्जेक्ट जो है इट हैज़ कम एट द एंड, राइट? सो प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट जनरली हम लोग का सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस का बिगिनिंग में आता है, बट सम टाइम आपको एक ऐसा सेंटेंस भी देखने को मिल सकता है जहाँ पे आपका सब्जेक्ट लास्ट में आया रहेगा. ठीक है, सो आई एम प्रीटी मच श्योर यहाँ तक सबका क्लियर है. सो हम थोड़ा से बैक जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोग कुछ चीज़ समझाना चाहता है, दैट इज़ द रीज़न वाई आई हैव यहाँ वापस आ गया. नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जब आप वॉइसेस करेगा ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, आपको हमेशा सब्जेक्ट को खोजना होगा सेंटेंस में. एंड हम आपको अभी दिखाया दैट कभी सब्जेक्ट आगे आ रहा है, कभी पीछे आ रहा है, तो यू मे बी कन्फ्यूज्ड सम टाइम, राइट? आप जो है कन्फ्यूजन हो सकता है दैट सब्जेक्ट क्या है, यहाँ में कौन सा है. लेकिन अगर आप सब्जेक्ट को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, देन यू कैनॉट बी एबल टू राइट अ सेंटेंस, you cannot be able to change the sentence from active to passive voice. Fine. Now I want you to understand that अगर कभी ऐसा confusion होगा, आपको बस क्या करना है, आपको अपना जो वर्ब है उसको फाइंड आउट करना है. ठीक है.
Now once you find out a verb, you are supposed to ask two questions. First is who और दूसरा is what. When you ask these two questions to your verb, आपको क्या मिलेगा? आपको अपना सब्जेक्ट मिलेगा at all times. Okay, आपको हमेशा एक आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा. Suppose let us have a look. सर सब्जेक्ट मिडिल में आ सकता है क्या? Yes, it can come anywhere. It can come anywhere. Okay, not necessary कि फर्स्ट में आएगा, बीच में आएगा, लास्ट में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, राइट? सो बेसिकली आपको सब्जेक्ट कौन सा है कैसे फाइंड आउट करेगा कि बीच में है ना, फर्स्ट में है ना, लास्ट में है. दिस इज द फॉर्मूला दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड. आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला को, ठीक है? अभी हम लोग ये फॉर्मूलाज को जस्ट हम लोग एक बार वेरीफाई करके देखते हैं, राइट? सो देखो बोलता है दैट अगर आपके पास कभी कुछ कन्फ्यूजन है दैट आपका सब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है, तो आपको सबसे पहले क्या खोजना है? वर्ब. वर्ब क्या होता है? की करने क्या, वो लाइट चला गया, नेटवर्क भी खत्म. सो सॉरी टू नो दैट. आई विश आई कुड डू एनीथिंग अबाउट द सेम. घर का लाइट चला गया बोल रहे. यहाँ भी नेटवर्क का थोड़ा इश्यू तो हो रहा है, बट देन समहाउ वी आर मैनेजिंग बिकॉज एज आई टोल्ड यू वेदर थोड़ा ख़राब है ना, इसका वजह से. Action of noun. Okay, LD, very good. You can say like that. Verbs are words. Basically जो हम लोग को action बताता है ना. All the words which signify that denote action are called verbs. जैसे कि eat, play, write, sing. All these words are called verb, right? Now let us find out. Okay, let us use the formula. यहाँ पे हम लोग का verb है play ना, क्योंकि वो action बता रहा है. Now अगर आप verb मिल गया play तो उसका हम लोग क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? Who plays? कौन खेलता है? आप बोलेगा राम, क्योंकि यहाँ में दिया हुआ है ना, तो जैसे ही राम मिला तो ये हम लोग का सब्जेक्ट है, राइट? सब्जेक्ट को ऐसे फाइंड आउट करना है, ठीक है? यहाँ में बोलेगा आपका वर्ब देखेगा स्पीक है, हम फिर क्वेश्चन पूछेगा हु स्पीक, कौन बात करता है? आई. सो आई इज योर सब्जेक्ट. Without subject and predicate there cannot be no sentence. Admi. हम जैसे इसीलिए आपको बता रहे, they are basics for writing a sentence. अगर आप sentence लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे एक subject और predicate होना ही है, नहीं तो वो sentence नहीं बन पाएगा, ठीक है? Anyway, no, as I was saying, यहाँ पे देखिएगा अगर आप who speak तो आप बोलेगा I speak. Is a good girl. Who is a good girl? She. Very smooth. What is very smooth? This pen. Who is very aggressive? This dog. So this is how you are to find out a subject. If you ever have any confusion, ना अगर आपको कभी कुछ confusion होता, what speak? ऐसा नहीं होगा, इंसान है ना वैली, तो what तो हम लोग जो है basically we use it for you know like क्या ना, क्या बात करता है ना, कौन बात करता है, ऐसा होता है ना. हिंदी आदमी लोग बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में देखो वो लोग ऐसा बोलते हैं व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, ऐसा नहीं होता है. आपका फेवरेट कलर क्या है नहीं होता है, कौन सा है ऐसा होना चाहिए. तो सेंटेंस जो है व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर इज रॉन्ग, आपको बोलना है विच इज़ योर फेवरेट कलर, लाइक दैट. एंड लाइक वाइज व्हाट, क्या चीज़ इंग्लिश बोलता है, ऐसा है. अगर जानवर भी बोलता है, सामान भी बोलता है, ऐसा तो नहीं होगा ना, इंसान इंग्लिश बोलता है, तो हम लोग इसीलिए लिखते हैं हु स्पीक इंग्लिश, राइट? दोनों में से मतलब आप एक को यूज़ करो, आपको दोनों यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, राइट? नॉन लिविंग थिंग के लिए जैसा कि हम यहाँ में व्हाट यूज़ किया, अभी यहाँ में पेन के लिए हम हु इज़ वेरी स्मूथ तो नहीं बोलेगा, हम बोलेंगे कि व्हाट इज़ वेरी स्मूथ, क्या चीज़ जो है वो स्मूथ है, तो हम बोलेगा दिस पेन, लाइक दैट. ओके, yeah, I can understand really. As I told you, though I'm basically from Sikkim, but then born and brought up in Arunachal Pradesh. Okay, so that is the reason. My Hindi is also not very good. मेरा हिंदी भी हम ऐसे वाला ही है ना, not very clear. Okay, so please you know, like do not bother much because at the end of the day we have to appear our examination in English, right? So कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हम लोग हिंदी ज़्यादा अच्छा है या नहीं है. Of course mainland people का इतना अच्छा हिंदी हम लोग नहीं बोल पाते ना, so it's okay. Anyway, so हम जैसा कि let us do the brief revision, okay? हम लोग सबसे पहले देखा subject और predicate, and I told you people that without subject and predicate एक सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता है ना. और सब्जेक्ट क्या है? कोई भी नाउन या प्रोनाउन जिसका बारे पे सेंटेंस बोला गया हो.
एंड प्रेडिकेट क्या है, जो सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जो कुछ भी बोलेगा ना, चाहे एक वर्ड हो या 4 वर्ड हो, 5 वर्ड हो, 50 वर्ड हो, इट डजंट मेक नो डिफरेंस, ओके। वो हमेशा एक सब्जेक्ट, सॉरी वो प्रेडिकेट ही है, राइट। एंड लास्टली हम लोग ये पढ़ा दैट हमेशा ज़रूरत नहीं है कि सब्जेक्ट जो है फर्स्ट में आएगा या फिर लास्ट में आएगा, वो कभी कभार बीच में आ सकता है, कभी लास्ट में आ सकता है, कभी फर्स्ट में आ सकता है। सो इफ़ यू एवर हैव एनी कन्फ्यूजन यूज दिस वन ना, ठीक है। चलो ठीक है, विल मूव ऑन, ओके। सो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हम आपको पहले भी बता चुका है, they are not going to ask you a question what is subject or what is predicate like that in your examination, right। ऑब्जेक्टिव होगा तो आपको अंडरलाइन करके बोलेगा ये वर्ड जो है वो सब्जेक्ट है ना प्रेडिकेट है, ऐसा बोल सकता है ऑप्शन में ना, तो आपको अकॉर्डिंगली ये करना है, ठीक है। एनीवे, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी वुड बी डिस्कसिंग इज द सेंटेंस। नाउ सेंटेंस क्या बोलता है बेसिकली का डेफिनेशन, अ सेंटेंस is a group of words which makes sense. Just give me a moment, okay? इसको फिलहाल तो ब्लैंक्स रखते हैं यहाँ पे एक। So यू नो बाद में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू, ठीक है। डोंट बॉदर अबाउट द एग्जांपल्स, ओके। जब नोट्स भेजिएगा, पीडीएफ भेजिएगा तो हमें आपको एग्जांपल्स मिल जाएगा और भी सारा, ठीक है। एनीवे, बेला ना। एनीवे, नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस वन यू कैन सी दैट देयर इज अ डेफिनेशन हियर एंड मोस्ट ऑफ यू लाइक आप लोग सबको शायद पता ही होगा सेंटेंस क्या होता है ना। बेसिकली डेफिनेशन बोलता है कि जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड व्हेन दे कम टुगेदर, ठीक है, when they come together तो वो क्या होता है, okay fine Edmi, thank you for helping me out, so I'm gonna write it here, okay cool, thank you। anyway, so as I was saying that जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड when they come together जब एक साथ आता है और वो जब सेंस बनाता है, हम लोग उसको क्या बोलता है, एक सेंटेंस बोलता है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल, under, don't write, okay, I'm just trying to make you people understand, बाद में हम लिखा देगा ना, under the table। so the question is how many words can you see, 1 2 3 words, they are combining together, ऐसा ना। under the tree का मतलब होता है टेबल का नीचे है ना। अगर ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, इसका मतलब निकल रहा है, राइट। अगर हम इसको लिखता the under table, now you can see that ये भी 3 words है, ये भी 3 words है, what is the difference, it does not make no sense, इसका कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है, right। and this one is what, this one is a sentence, watching 40 but likes 5, it seems not good, everyone must hit like 2, I'm practicing। okay, I think this is not for me। anyway, now if you observe you can see that, please have a look, okay, listen to me very carefully। now if you observe you can see that under the tree there are 3 words, they are combining together, they are making sense, okay। those who think that this is a sentence please type Y, those who think that this is not a sentence please type N। can you guys do that, please do that। those who are listening, I want you people to do one thing, that अगर आप लोगों को लगता है ये एक सेंटेंस है, please type Y, if you think this is not a sentence please type N, that is yes or no, just like that, okay। I can see that some of you are typing Y, some of you are typing, very good, please do respond, okay। चलो फटाफट करना, लेकिन N N N Y, okay, very good, N, okay। do we have anyone, not a complete sentence,
Okay. Why? Okay. The under. No, this is wrong. This is, I'm not talking about this one, okay? ये इसीलिए, दैट इज़ वाई आई वांट यू पीपल टू लिसन वेरी केयरफुली. वेली हम बता रहा था कि कम्बिनेशन ऑफ वर्ड तो ये भी है, ये भी कम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, यानी कि दो से ज़्यादा वर्ड एक साथ आ रहे हैं, लेकिन इसमें तो कोई सेंस नहीं निकल रहा है ना, तो ये तो सेंटेंस हो ही नहीं सकता है. माई क्वेश्चन इज, ये ऊपर वाला जो है जिसमें सेंस निकल रहा है, क्या ये एक सेंटेंस है? दैट वॉज व्हाट आई आस्क्ड. नाउ सिंस आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव टाइप्ड, आई एम गोना मेक यू अंडरस्टैंड. ओके, अंडर द ट्री का मतलब है, सॉरी अंडर द टेबल का मतलब है टेबल का नीचे. दो इट इज मेकिंग सेंस, बट एज वेला सेड द सेंस इज नॉट कंप्लीट. सेंस जो है कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगर हम आपका पास आए और आपको बोला है कि टेबल का नीचे, तो आप बोलेगा सर टेबल का नीचे क्या है ना, मे बी अ पेन, मे बी अ बुक, मे बी अ डॉग. सो बेसिकली इट इज मेकिंग सेंस बट सेंस इज नॉट कंप्लीट, सो दिस इज नॉट अ सेंटेंस. सेंटेंस का डेफिनेशन क्या बोलता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना है और जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलना है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखता है कि राम इज अ गुड बॉय. Now you can see we have 1, 2, 3, 4, 5 words. Ram is a good boy. And this sense is also complete. यहाँ में बोल रहा है कि बेला अंडर द टेबल का मतलब होता है टेबल का नीचे. Yes, what is under table? That question may come, ना. Ram is a good boy. Now, if you observe this one, this statement is making a complete sense. So that is why we can call it a sentence. Why? Because combination of words making a complete sense, that is why this one is a sentence. But this one is not a sentence. Why not? Because sense is incomplete. ठीक है? I'm gonna write one more, okay? If she comes here, now look at this one. 1, 2, 3, 4 words. 1, 2, 3, 4 words. 4 words combining together making sense. Again the question is same. How many of you think that this is a sentence? Type Y. Those who think this is not a sentence, please type N, okay? Let's start. Once again. Those who think that if she comes here is a sentence, please type Y. Those who think it's not a sentence, please type N. Okay, what about others? Please do type. I would really appreciate if you respond fast, okay? Confused? Okay, so that is why I'm here. LD, you don't have to bother, okay? That is why I'm here. Anyway, now if you observe this one, let me make you understand, okay? Please listen to me carefully. Now, if you observe the sentence or a statement, you can see that we have 1, 2, 3, 4. It is making sense, isn't it? Sense तो हो रहा है ना? बोल रहा है कि if she comes here का मतलब है अगर वो यहाँ आने से ऐसा बोल रहा है. But again, the sense is not complete. अगर वो यहाँ आने से, तो आने से क्या? आप आएगा, आप नहीं आएगा, ना? इस तरह का अगर आप, this is again incomplete, okay? So this one is also not a sentence, right? So I hope you people are clear what is a sentence, right? Sentence क्या है? Combination of word which makes a complete sense. Sense जो है वो complete होना है. यहाँ पे मतलब तो निकल रहा है लेकिन मतलब जो है incomplete है. That is why this is not a sentence. Fine? यहाँ तक शायद सबका clear है. Now let us have a look at incomplete sentences, okay? Under the tree. एक ये था, दूसरा था if she comes here. Now this is incomplete, and if you observe the second one, you can find that this one is also incomplete. So the first one is it's a phrase, and the second one is a
clause. Okay, now as I was talking, I want you people to please listen very carefully. Okay, please आप ध्यान से सुनिएगा. Now I'm writing the examples. Okay, don't worry. लिखा, just wait for some time. Now हम अभी जो बोल रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिएगा ना. देखो ये कम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, सेंस तो है, इनकम्प्लीट है. ये भी क्या है, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, सेंस तो निकल रहा है लेकिन इनकम्प्लीट है. दोनों ही इनकम्प्लीट है, राइट. लेकिन एक जो है वो फ्रेज है, दूसरा क्लाउज है. क्यों? दैट आई एम गोना मेक यू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ इफ यू ऑब्जर्व द फर्स्ट सेंटेंस यू कैन सी दैट वी हैव अ नाउन हियर, और यू कैन से सब्जेक्ट. क्या के बारे में बात कर रहे हैं? द ट्री. The tree is a noun, but it is not a subject. Why not subject? हम आपको आगे में बताया था that subject. That is what I'm explaining. That is why really I want you to listen very carefully. Okay, that is what I'm explaining. Phrase और clause क्या है उसको हम आपको बता रहे हैं ना. Have patience and listen very carefully. Okay. Now as I was saying that यहाँ पे इनकम्प्लीट होने के बावजूद देर इज नो सब्जेक्ट हियर. द ट्री इज ए नाउन बट इट्स नॉट ए सब्जेक्ट. ठीक है, बट हियर यू कैन सी शी इज ए सब्जेक्ट. ये क्या है? इज आवर सब्जेक्ट, राइट. सो देर इज ए सब्जेक्ट हियर, देर इज नो सब्जेक्ट हियर. दैट इज वाई द अबव वन इज फ्रेज एंड नीचे वन इज क्लाउज. Again, let us go back briefly. Okay, थोड़ा से वापस जाते हैं, हम आप लोगों को फिर समझाते हैं ना. Please have a look and try to understand properly. Fine. Now, if you observe, I told you that subject क्या है? It can be a noun or a pronoun. या तो वो एक noun होगा या pronoun होगा. ठीक है. Now, Ram is a noun. It is a subject. Cricket is a noun, but cricket is not a subject. Why? I told you that noun must have a verb after it. Noun के बाद हमेशा एक verb होना है, तब जाके ही वो noun subject माना जाएगा. Ram is a subject. Why? Because it has a verb after it. उसका अपना verb है. English is not a subject. क्यों? क्योंकि इसके पास भी verb नहीं है. ठीक है. Likewise, अगर आप यहाँ पे देखेगा, then you can find that tree is a noun. Tree is a name of nothing ना, लेकिन इसका पास verb है क्या? नहीं है. इसीलिए ये जो है सब्जेक्ट नहीं हो सकता है. शी इज ए प्रोनाउन, उसका तो वर्ब है कम्स. ठीक है, इसीलिए शी जो है वो सब्जेक्ट है. ठीक है. नाउ आई वांट यू टू पीपल टू अंडरस्टैंड दैट देयर वाज दिस क्वेश्चन. वेली ने पूछा था कि फ्रेज और क्लाउज जो है क्या है. हम आपको बता रहे हैं कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बोलते हैं ना. कम्बिनेशन ऑफ वर्ड मतलब जब एक से ज़्यादा वर्ड एक साथ आता है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड तो सेंटेंस भी है, फ्रेज भी है, क्लाउज भी है. तीनों का तीनों क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड. और तीनों का तीनों क्या है? दे मेक सेंस. तीनों का तीनों में जो है सेंस निकलता है, मतलब समझ में आता है. लेकिन सेंटेंस डिफरेंट क्यों है? क्योंकि सेंटेंस में कंप्लीट सेंस होता है. फ्रेज और क्लाउज में क्या डिफरेंस है? फ्रेज में जो है आपको सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्लाउज में जो है इनकम्प्लीट होने के बावजूद सब्जेक्ट देखने को मिलता है. Sir, can you give us a little moment to note down? Yes, of course, you can take your time to note it down, or you can take the screenshot so that you can take notes later. So, now I want you people to tell me if you have any confusion regarding phrase, clause or sentence. किस को कंफ्यूजन है? प्लीज टेल मी. ये तीनों का बीच में डिफरेंस अगर क्लियर है तो प्लीज टाइप सी. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज डू दैट. ओके सर, अलग से वर्ब, क्लॉज, फ्रेज क्रॉस करने से व्हाई यू पीपल आर सो इम्पेशेंट? मिस अ गूगल यूजर, डोंट वरी. ओके, जस्ट गिव मी टाइम. वी आर गोना डिस्कस सर क्लाउज, फ्रेज और यू नो लाइक वर्ब, फ्रेज एटसेट्रा. बट देन दिस इज नॉट दिस. दिस इज टोटली डिफरेंट थिंग. हम बस आपको सेंटेंस और फ्रेज और इस क्लाउज का डिफरेंस समझा रहा है. मोर ओवर इट्स लाइक अ क्लाउज और फ्रेज इज नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ना. तो उसको हम आपको जो है फिर भी हम आपको क्लाउज क्या है, फ्रेज क्या है, वो सब तो हम बता देगा. बट स्टिल व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज सेंटेंस
को आपको समझना है कि सेंटेंस एग्जैक्टली होता क्या है। उसको आदमी लोग यूजुअली जो है फ्रेज और क्लाउज के साथ में कंफ्यूज करता है ना, इसीलिए। नाउ आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड फ्रेज क्या है, क्लाउज क्या है और सेंटेंस क्या है। if you guys want me to repeat, please type repeat, okay? I hope most of you have understood, but still if you have any confusion, please type R or repeat, so that I would know कि still there are some students who are confused. Okay, I can see that most of you are clear, but still, see, I want you people to understand one thing, okay? Even if there is this classroom is more like a classroom जो है वो it's more like a house ना, and we all are the members, okay? तो हम लोग usually what do we do? आप लोग किसी को easily समझ में आएगा, किसी को कोई part जो है तकलीफ होगा, किसी को जो है noun easily समझ में आया, किसी को pronouns easily समझ में आया, तो अगर एक को भी समझ में नहीं आता तो we'll try to repeat it ना, हम लोग कोशिश करते हैं। Those who have understood, it would be more like a revision for you people, but those who haven't, I'm gonna make you understand once again. That is my duty, okay? And I would like to request the rest of you, those who have already understood, to be patient, na? No problem. We all are slow learner, okay? Anyway, I'm gonna make you understand. Please be, listen carefully, okay? So I'm gonna make you understand sentence once again. So sentence basically क्या होता है? Group of words, or you can say दो या दो से ज़्यादा words एक साथ जब आता है और आके complete करता है सेंस को, तब हम लोग उसको क्या बोलता है? सेंटेंस। जैसा कि राम is a good boy. Let me write you some more example of sentence, okay? अगर हम बोलता है he goes to college, वो कॉलेज जाता है। Again, combination of word, it's a complete sentence, okay? Now, अगर हम लिखता है my mother speaks Hindi. Now you can see that this is also a complete sentence. Why? Because they are making a complete sense, ना? अगर हम बोलता है I play badminton. Now this one is also, all these are sentences. Why? Because sense are complete, ना? यहाँ सब कुछ complete है, तो ये एक sentence हो गया combination of word होने के बावजूद। It doesn't make कितना word है, लेकिन दो से ज़्यादा होना है ना, एक word तो sentence नहीं है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, it can be ना 1 or 2. Now all these are sentences. Why? Because all of them they are making sense, isn't it? और sense भी complete है, जैसे कि बोल रहा है कि वो कॉलेज जाता है, complete. मेरा मम्मी हिंदी बोलता है, कंप्लीट। हम बैडमिंटन खेलता है या फिर मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, करेक्ट। ऑल दिस आर कंप्लीट, ओके? सो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होने के साथ साथ ये लोग कंप्लीट है, इसीलिए हम लोग इसको बोलता है सेंटेंस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट लाइक अ फ्रेज ना, जैसे कि देखो अभी हम लिखता है नियर द टेम्पल, इसका मतलब है हाउ मेनी वर्ड्स, लेट अस काउंट 1 2 3, 3 words are there, combination of words हो गया, मतलब भी निकल। नियर द टेम्पल का मतलब क्या है? मंदिर के पास, राइट, मंदिर के पास। अगर हम बोलता है if you invite me, now again you can see that how many words? 1 2 3 4. So all both these sentences, these are combination of words, और दोनों का जो है मतलब भी निकल रहा है, लेकिन इनकम्प्लीट है। ये भी तो इनकम्प्लीट है ना। मंदिर के पास, आपका पास कोई आया और बोला है कि मंदिर के पास, तो आप बोले तो मंदिर के पास क्या जाना है, आना है, मंदिर के पास कुछ होगा, क्या होगा, वी डोंट नो। सो इनकम्प्लीट है तो हम लोग इसको बोलेगा इनकम्प्लीट। ये भी बोल रहे हैं अगर आप हमको इनवाइट करने से, अगर आप दोस्त के पास गए और आप उसको बोला कि अगर आप हमको इनवाइट करने से, तो दोस्त बोलेगा तो क्या आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा बताओ हमको, ऐसा ना। सो दोनों इनकम्प्लीट है, यानी कि दोनों सेंटेंस नहीं हो सकता, राइट? सो इट्स वेरी क्लियर नाउ दैट दोनों, बोथ ऑफ देम कैनॉट बी ए सेंटेंस। नाउ द डिफरेंस इज दैट
यहाँ पे हम लोग के पास टेम्पल है. टेम्पल हम लोग को नाउन का मतलब है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. वी नो दैट, राइट? नाउ वी नो दैट टेम्पल इज अ नाउन, राइट? वी ऑल्सो नो दैट यू इज ए प्रोनाउन. सब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन दोनों ही हो सकता है ना, हम आपको ऑलरेडी बता चुका है फर्स्ट में ना. नाउन होगा या फिर नाउन का इक्विवेलेंट होगा, दोनों नाउन तो है. देखो दोनों में नाउन है, ठीक है. नाउ ये नाउन का सब्जेक्ट वर्ब है क्या? वी डोंट हैव ए वर्ब हियर. नियर इज नॉट ए वर्ब. ओके, नियर तो एक्शन को नहीं बताता है ना, पास से ये तो ये एक प्रीपोजिशन यू कैन से. यू इनवाइट, यू का क्या है वर्ब? इनवाइट करने वाला एक्शन. सो यू कैन सी दैट दिस प्रोनाउन हैज ए वर्ब, विच मीन्स इसको हम लोग सब्जेक्ट मान सकता है. हम लोग को पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके पास अपना एक नाउन या प्रोनाउन जिसके पास अपना एक वर्ब होता है. लेकिन इसके पास तो वर्ब, वी डोंट हैव वर्ब. सो अगर मीनिंग तो इनकम्प्लीट, मीनिंग तो निकल रहा है लेकिन इनकम्प्लीट है, मीनिंग तो निकल रहा है इनकम्प्लीट है, वर्ब भी नहीं है बोलने से वो क्या होगा? यहाँ पे हम लोग के पास इनकम्प्लीट तो है लेकिन एटलीस्ट वी हैव अ सब्जेक्ट, सो वी कॉल इट clause. That is the difference between subject, sentence, phrase and clause. What about now? Likha Bodo, we have like user Google user the great. Those who wanted me to repeat, is it clear to all of them? Please do type C if it's clear. अगर आप लोग clear है बोलने से हम लोग आगे बढ़ेगा. Make it fast. Can you please do it fast? Okay, बातों का clear हो गया. What about the great? Clear. Okay, Google user का भी clear है. That's really good. The great का भी clear है. Okay. So very good. I can see that you people are very smart, very talented. Let us go to the new topic. Okay, sorry, or new heading you can say. Very good. I can see that you people are very hardworking and talented. Classification of sentences. Can you please write the next heading, that is classification of sentences, or in other words different sentences that we have. One, assertive or declarative. Sentence or statements. So this is the first type of sentence that we have in English. So sentence we have just understood. We are going to understand the different sentences that we have in English. Okay. Okay, now if you observe, you can see the first sentence that we have is assertive sentence, or they are also called declarative sentence. Sometimes they are called statements. Okay, बोलता है a sentence that makes an assertion or declaration is called or an assertive sentence. Example: I teach English. She eats pork. This pen is my favorite. Now, if you observe these examples, you can see that the first type of sentence that we have is called assertive sentence. Okay, assertive sentence क्या है? कोई भी sentence which do the assertion or declaration. अगर simple सा word में समझना है ऐसा समझो, कोई भी sentence जो हम लोग बताने के लिए यूज करता है,
और इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज़ करता है। नॉट नेसेसरली आप अपना बारे में, मे बी अबाउट द पीपल अराउंड, जो आदमी आसपास है उसके बारे में ना। जब आप एक सेंटेंस को यूज़ करते हैं अपना बारे में या किसी और के बारे में बताने के लिए, वी कॉल इट असर्टिव सेंटेंस। ओके, नाउ देखो तो आई टीच इंग्लिश, हम अपना बारे में बता रहा है। शी ईट्स पोर्क, वो पोर्क खाता है, उसका बारे में बता रहा है। दिस पेन इज़ माई फेवरेट, ये पेन मेरा फेवरेट है, बता रहा है पेन के बारे में ना। सो बेसिकली जब आप एक सेंटेंस को यूज़ करता है बताने के लिए, वी कॉल इट अ सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस बताने के लिए यूज़ करने से ना। नाउ फिर बोलता है एक नोट, assertive sentences can be of two types। assertive sentence दो तरह का हो सकता है। एक क्या हो गया, affirmative, जिसको हम लोग पॉजिटिव भी बोलता है सेंटेंस। दूसरा क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव, ये दोनों असर्टिव सेंटेंस के अंदर में आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई ईट बीफ, या फिर हम बोलेगा आई डू नॉट ईट बीफ। देखो तो दोनों ये बता रहा है ना, फर्स्ट में बोल रहा है कि हम बीफ खाता है, दूसरा में बोल रहा है कि हम बीफ नहीं खाता है। दोनों इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन सेकंड में क्या आ गया, नॉट। आई होप यू पीपल आर अवेयर, जब आपका सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर, नन एटसेट्रा, अगर ये सब आता है तो आपका सेंटेंस क्या हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो देखिएगा कि बताने में तो ये भी बता रहा है, ये भी बता रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पे हम लोग नॉट आ गया ना, इसीलिए जो है ये नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस है, और ये क्या है, पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? I hope it's clear to all of you. Please type C if it's clear to all of you. Assertive sentence, it should be clear. Okay. तालो का क्लियर है, नेचर लवर का क्लियर है, पातुक का क्लियर है, क्लियर क्लियर, पातुक रिप ताकू गेमिंग क्लियर, राइली क्लियर, याते क्लियर, ताकू क्लियर, बादो क्लियर, यूजर क्लियर, LD clear, PP Valley clear, Tacho clear, O, I don't know how to pronounce it, I think O00 maybe, it's clear. Okay, so I can see that most of you have understood. Repair earth is also clear, cherry का clear है। So you can see that assertive sentence क्या है, एक ऐसा sentence जो हम लोग information देने के लिए use करता है। Every time you speak or write a sentence to provide information, we call it assertive sentence। ठीक है, दूसरा क्या है, assertive sentence या तो positive होगा या तो negative होगा, दोनों ही information देने के लिए use करता है। I drink alcohol, I don't drink alcohol, like that, right? Now before we wrap up our class, I'm gonna write combination of word, okay, and I want you people to tell me कि वो जो है sentence है, phrase है ना, clause है। जस्ट टाइप, जिसको लगता है सेंटेंस है प्लीज टाइप S, जिसको लगता है फ्रेज है प्लीज टाइप P, दोज हू थिंक इट्स ए क्लाउज प्लीज टाइप अकॉर्डिंगली ना। चलो हम लिख रहे हैं, ठीक है, बड़ा सा लिखते हैं ना, बर्ड्स फ्लाई। ऑप्शन नंबर A सेंटेंस, ऑप्शन नंबर B फ्रेज, ऑप्शन नंबर C क्लाउज। चलो हम बाद में आपको आंसर बताएगा लास्ट में। चलो आप लोग फटाफट ABC लिखो, या फिर आप लिखो सेंट S, फ्रेज या क्लाउज, तीनों में से एक टाइप करो फटाफट। आई कैन सी B मतलब फ्रेज 2 का है। कहाँ से शुरू है, वैली से शुरू है ना।
वेली का बी, रिप का सी, ताई सिन्या का सी, गूगल बी सी, टॉबिंग सी, क्लाउज एल डी पी, पी क्या प्रेस, ओके सी 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 सी, एल डी इतना सारा सी, ए कोई नहीं लिखा है क्या? Do we not have anybody who thinks A is the correct answer? Okay. तो इसका मतलब आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया ना, सेंटेंस, फ्रेज और क्लाउज. बट स्टिल आई कैन सी दैट किसी का ओके एल डी का ए, चलो स्टिल आई कैन सी किसी किसी का बी है, किसी किसी का सी है, यानी कि अभी भी किसी किसी को कंफ्यूजन है कि ये फ्रेज या क्लाउज है, ऐसा ना. एल डी ने तो ए, एल डी आपने दो लिखा जो आप फिर मिटा दिया. ओके फुल सेंटेंस नहीं है गूगल इज ओके कूल. किसी को लगता है ये फुल सेंटेंस नहीं है. एलडी का हम देखेगा, उसने सी लिखा था फिर अभी ए लिखा था फिर हटा दिया. कंफ्यूज. ओके लेट अस हैव अ लुक. ओके लेट अस एग्जामिन इट. बोल रहा है कि इसको हिंदी में अगर बोलने से हम लोग बोलेगा बर्ड्स फ्लाई का हिंदी है चिड़िया उड़ता है. इसमें और क्या चाहिए आप लोग को कंप्लीट करने के लिए? क्या हमको बोलना है कि चिड़िया उड़ता है पंख से ऐसे, या फिर हम बोलना है कि चिड़िया उड़ता है आसमान में ऐसे? क्या चीज़ बोलना है? दैट आई डोंट अंडरस्टैंड. मेरे लिए तो ये कंप्लीट सेंटेंस है. कैसे सर सेंटेंस है? बर्ड्स मेरे लिए सब्जेक्ट है क्योंकि ये नाउन है ना, बर्ड्स मतलब चिड़िया. वर्ब क्या है? फ्लाई, उड़ने वाला एक्शन. सेंटेंस यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट यानी कि वर्ब भी है, और इसका सेंस मेरा तरफ से कंप्लीट है. मेरे लिए कंप्लीट सेंटेंस है. पता नहीं आप लोगों के लिए क्यों नहीं है. अगर हम बोलेगा मछली तैरता है, क्या ये कंप्लीट नहीं है क्या? तैरना मतलब आसमान में तो नहीं तैरेगा ना, पानी में ही तैरेगा. इट्स वेरी ऑब्वियस. अगर हम बोलता है कि बर्ड्स फ्लाई, इसका मतलब है चिड़िया उड़ता है, तो उड़ता मतलब पानी के अंदर उड़ेगा क्या, या जमीन में उड़ेगा क्या? ऐसा तो नहीं है ना, आसमान में ही उड़ेगा. बर्ड्स फ्लाई, यूजर गूगल यूजर मतलब फ्लाई मतलब क्या, जमीन के अंदर में उड़ेगा? ऐसा तो वेयर मतलब इनसाइड वाटर फ्लाई तो नहीं होता है ना. फ्लाई कहाँ में होता है? जमीन में या फिर जमीन का अंदर. इट्स प्रिटी ऑब्वियस. यू नीड टू कीप योर कॉमन सेंस हियर. उड़ रहा है मतलब कहाँ में उड़ेगा? आसमान में, राइट. सो दिस इज a complete sentence. You need to understand. Okay? Though there is two word, but the sense is complete. Please follow that. Okay? All the time. Please follow that. अगर सेंस कंप्लीट है तो वो मछली कहाँ में तैरता है? ऑफ कोर्स आसमान में ना. इट्स वेरी ऑब्वियस. एनीवे, नो, एज आई वाज टेलिंग यू पीपल दैट even if there is two words, अगर सेंस कंप्लीट हो रहा है, then you need to understand it's a sentence. It doesn't need like 3 words होना है, 5 word होना है, 10 होना है. Not necessary at all. Yeah, of course, sentence can vary from 1 to 2 to 3 4. एक word तो नहीं हो सकता, of course. 2 3 4 10 हो सकता है. But you need to understand, even if 2 words are there, singular plural कहाँ से आ गया? ओके चिड़िया, ऐसे चिड़िया लोग उड़ते हैं. एक चिड़िया सिर्फ उड़ता है ऐसा तो नहीं है. आपका घर का पास जो है वो भी उड़ता है, मेरा घर का ऐसा चिड़िया जो है वो भी उड़ता है ना. सर ऑस्ट्रिच नहीं उड़ता है, ऐसा करके फिर क्वेश्चन मत पूछना. अगर ऐसा होता फिर अगेन आई एम गोना हैव डिफिकल्टी एक्सप्लेनिंग इट टू यू. राइट नाउ प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट बर्ड्स फ्लाई इज ए कंप्लीट सेंटेंस. व्हाई? बिकॉज अगर वहाँ पे प्रेडिकेट नहीं होता तो आप बोलना था सर वर्ब तो है ही नहीं है, कैसे? आप तो बोला था कि सेंटेंस में वर्ब होना है या प्रेडिकेट होना है. देन आई वुड हैव अंडरस्टूड. अगर आप बोलते सर वहाँ तो सब्जेक्ट है ही नहीं है, तब हम बोलना था कि हाँ ये सेंटेंस नहीं है. लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है? यस सब्जेक्ट. वेली आपने पूछा कि क्या सब्जेक्ट के साथ वर्ब होना है. अगर आपके पास वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं बन सकता ना. प्रेडिकेट का मतलब क्या है? वहाँ में वर्ब भी होगा, प्रीपोजिशन भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, लाइक दैट. ओके सो वर्ब तो होना ही है. अगर वर्ब नहीं होगा तो फिर सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर सेंटेंस नहीं होगा ना. हम आपको बताया एक नाउन या प्रोनाउन को तब जाके आप सब्जेक्ट मान सकता है व्हेन इट हैज़ अ वर्ब. So you can see bird is a noun and at the same time it is subject. Why? Because it has a verb here. Okay? चलो फिर ठीक है. We have discussed one sentence, one type of sentence and one type of sentence today. In the next class, that is tomorrow, we would be discussing the remaining type of sentences that we have in English.
ठीक है, let us call it a day. I'm gonna see you people in the next class. Okay, chalo, thank you very much everyone. Good night to all. Riley, can we please talk about that in some other class? Singular तो verb singular, subject plural तो verb singular नहीं हो सकता है, by the way. But then we are going to talk that in detail in the days to come. Okay, okay, chalo, bye bye everyone. Good night. I'll catch you people, okay, in the next class. Thank you.